Yes, good morning, beta. Yesterday we were doing chapter number 11, mensuration. We have discussed the formulas of different solid shapes, cube, cuboid, cylinder. ठीक है, ये किया था 3 figures, 3 shapes. Questions discuss किए थे from exercise 11.4. Fifth question, find the height of the cylinder whose volume is given. Volume of cylinder is given. Volume क्या होता है? Pi r square h. ठीक है? And volume is given as 1.54 meter cube. And diameter is given as 140 centimeter. Units are different. Stop writing and listen to me first. कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है. अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में नहीं करना, आपको इजी रहेगा अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो. ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इस वॉल्यूम को, यहाँ मीटर क्यूब है, तो जब आप कन्वर्ट करोगे यू विल मल्टीप्लाई इट विद 100. 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर है तो 3 टाइम्स है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट 3 टाइम्स विद 100. ठीक है, यहां से डेसिमल रिमूव करोगे 100 आ जाएगा. ये 6 zeros हैं, 2 zeros cancel, 154 with 4 zeros. Unit will be सेंटीमीटर क्यूब. क्यूब में आएगा. ठीक है, वॉल्यूम आ गया. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है. वॉल्यूम है क्या? ये आ गया. पाई की वैल्यू, रेडियस इज 70 into 70. Height is not given. Height you have to find. इसकी कटिंग कर दी 10, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दो. 22 into 10 into 70 is equal to h. Got it? Now cancel it out. 22 की कटिंग होती है 7 के साथ आएगा. 22 into 7 is 154 with 2 zeros. 7 ones are, ये आ गया 100. हाइट आ गई 100 सेंटीमीटर. If you are not able to make the cancellation in one step, you can make half cancellation in one step, then copy the same numbers, remaining number, then cancel them again. Got it? Clear? यही क्वेश्चन आप सारे सॉल्व करो. सॉल्व करो यही सेम क्वेश्चन. सॉल्व करो सारे, सेम क्वेश्चन सॉल्व करो सारे. Yes, next question, question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. एक टैंक है whose radius and length is given. Length means height given है. Find the quantity of milk that can be stored in the tank. What you have to find? You have to find volume. What is the formula, Samiksha? Volume is pi r square h. So all the things are given. Radius is given, height is given, pi you already know. Put the values and solve it. Solve it and get the answer. Answer will be already, it will be in meter cube, but you have to convert it into liter. ठीक है, पहले मीटर क्यूब में आएगा, then you will convert it. Two cases you will consider. पहले एक जो ओरिजिनल केस है वो लोगे, फिर एक न्यू केस लोगे. अगर पहले साइड ए है तो बाद में हो जाएगी डबल 2a. पहले वॉल्यूम अगर ए है साइड तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर. अब साइड डबल होगी 2a, तो 2a के साथ सरफेस एरिया न्यू निकाल लो, 6 ब्रैकेट में 2a होल स्क्वायर. ठीक है, फिर देखो कितना इंक्रीज हो रहा है. पहले 6a स्क्वायर था, अब कितना इंक्रीज हो रहा है? अब 24a स्क्वायर आ रहा है, तो कितना इंक्रीज हो गया? कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स. That will be 4 times of the previous one. 1 meter cube बच्चे. हाँ यहाँ पे
मीट वॉल्यूम है ना, so volume we have got in meter cube 49.5. 1 meter cube is equal to 1000 liter. If 1 meter cube is having 1000 liter, then this much meter cube you will convert it into liter by multiplying it with 1000. So that will be 49,500 liter milk can be contained in that tank. Okay. ये नोट करने का क्या बेनिफिट है, सब कुछ किया हुआ है ऑलरेडी। अब तो बेनिफिट तब होगा जब आप खुद सॉल्व करोगे। यहां से कॉपी करके क्या बेनिफिट है, वॉल्यूम, हाँ 2a का होल क्यूब, तो क्या बन जाएगा 8a क्यूब। पहले कितना था वॉल्यूम, a क्यूब, अब कितना हो गया 8a क्यूब, तो कितना टाइम्स हो गया। Yes, listen. Question number 7 is very important question and it is concept based question. Yes, listen to me carefully. You are having a cube. A cube is there. जो क्यूब है उसकी एज आपने सपोज करनी है, that is A. अगर इसकी एज A है, then what will be the surface area? Surface area means total surface area. क्या होगा 6a square. Now the case is if you doubled this edge, अगर आप इस एज का डबल कर दो तो न्यू क्यूब विल बी फॉर्म। पहले क्यूब था जिसकी साइड थी सपोज करो 4, अब उसका डबल हो गया 8, तो क्यूब बड़ा हो जाएगा। अगर इसकी एज a है तो इसकी एज डबल हो जाएगी 2a, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6, a की जगह क्या आ जाएगा 2a। फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर यू विल मेक, क्या आएगी वैल्यू 4a स्क्वायर, दैट इज 24a स्क्वायर। अर्लियर इट वाज 6a स्क्वायर, नाउ इट हैज बिकम 24a स्क्वायर, तो कितना इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। तो न्यू सरफेस एरिया विल बी 4 times the original surface area. Got it? ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, पहले सुन लो इधर। नेक्स्ट देखो सेम है। अब नेक्स्ट कहता है साइड पहले a थी, इसका वॉल्यूम क्या आएगा a क्यूब। अब जो न्यू वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या आएगा 2a होल क्यूब, क्या आ जाएगा अर्लियर इट वाज a क्यूब, नाउ इट हैज बिकम 8a क्यूब, तो कितना इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स। न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, टू क्यों आएगा ये पता है आपको, हाँ डबल। अगर ट्रिपल कहे तो चलो करो, ट्रिपल करो आप। ये तो मैंने डबल का करवाया ना, आप यही वाला दोनों चीजें फाइंड करो। इफ द एज ऑफ द क्यूब इज ट्रिपल्ड, चलो करो फाइंड, डबल की जगह करो, दोनों चीजें फाइंड करो। हाँ जी, फिर उसका सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, करो। लेट एवरीबडी कंप्लीट, बोलो मत। मैम आज भी अटेंडेंस लेनी है ना? हाँ जी हाँ जी, बस ये हो गया, ऐसे ही करना है, मैंने ऐसे लिखा है।
ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, ये कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हुआ। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 54 बन जाए, हाँ तो 9 टाइम्स हो गया। ए स्क्वायर लगाओ साथ में, करो सॉल्व। 3 का स्क्वायर 6 होता है, क्या होता है, तो फिर कौन लिखेगा, कितना आ रहा है सरफेस एरिया, earlier it was a 6a square and now it has become 54a square, आ रहा है 54, बोलो फिर क्या हुआ, क्या पूछना है अकुल, देखो क्या नहीं आया उसे। मैम उसमें जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है क्यूब में, वहां पे 6qa स्क्वायर है तो उसको 4 इसमें किया है, 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं करोगे, यहाँ पे क्या आएगा 3a, 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 9 6 earlier it was 6a square has become 54, कितना इंक्रीज हुआ है, 6 9 का 54 होता है ना, तो it has become 9 times. And what about volume? Volume 27a cube, it has become 27 times the original volume. Is it okay? Clear? Now who will solve the next question? Come. Now after this question you will solve the example. I think 1 or 2 examples are left, otherwise rest of the things we had completed. 1000 liter, 1 मीटर बोला है सेंटीमीटर बोला है, 1 मीटर क्यूब अभी तो की है 1000 लीटर, now read out the next question at least 2-3 times. Book कहाँ है तन्मय? Read out the next question, hurry up. Read करो पहले question. Next question. Read करो पहले. टेन एंड 11 वैसे कर ली हुई है, लेकिन एक बार दोबारा कर लो, डिफरेंट है और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी. सिक्सटी से डिवाइड कर दो सीधे. नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सुनो जरा. कहते हैं एक रिजर्वॉयर है जिसमें पानी जो है ना वो 60 लीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है उसको फिल करने के लिए. ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का मतलब है 108 मीटर क्यूब. जो रिजर्वॉयर है उसकी कैपेसिटी है, मतलब उसमें इतना पानी आ सकता है. जैसे आपके घर पे वाटर टैंक लगा होता है, उसमें सपोज करो उसकी इतनी कैपेसिटी है, उसमें इतना पानी आप डेली भरते हो. मॉर्निंग में मोटर चलाते हैं ना सारी, ये पानी आप घर पे भरते हो. ठीक है, उसके बाद जो पानी की स्पीड है ना, जो पंप से ऊपर जाता है पानी, उसकी स्पीड आपको दे रखी है 60 लीटर पर मिनट. ये दे रखा है, ये लीटर में है, ये मीटर में था, तो इस मीटर क्यूब को भी लीटर में चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके. दोनों की यूनिट सेम होगी. अगर 1 मिनट में इतना पानी ऊपर जाता है तो बताओ इतना पानी फिल करने में टैंक में कितना टाइम लगेगा. तो टोटल जितना पानी चाहिए और 1 मिनट में जितना पानी ऊपर जा रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो. और आपको पता ही है कि टैंक की कैपेसिटी ज्यादा होगी. ये तो 1 मिनट में वाटर की स्पीड है ना, मतलब पानी दे रखा है, ये स्पीड है. देखा जाए तो 1 मिनट में 60 लीटर पानी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये स्पीड दे रखी है लीटर पर मिनट.
ये स्पीड दे रखी है, ये स्पीड होगी, ये टोटल आपका वॉल्यूम मतलब जितना आपने टैंक फिल करना है। तो जब आप डिवाइड कर दोगे यू विल, ये भी लीटर था, ये लीटर पर मिनट था, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, ये मिनट डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिनट्स में आंसर आ गया। 1800 मिनट्स लग रहे हैं उस वाटर टैंक को फिल करने में। अब ये मिनट में दे रखा है, तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड कर दो मिनट्स को, तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो 108 मीटर क्यूब वाला टैंक है उसको फिल करने में 30 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझ आई? इसका मतलब ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है जो घर पे लगे होते हैं। ठीक है, जैसे वो वाले है, वो वाले जो बाहर वाले टैंक होते हैं ना, जिसकी कैपेसिटी जो पूरे एरिया को पानी सप्लाई करते हैं, ये वो वाले वाटर टैंक की बात कर रहा है जो पूरी कॉलोनी को पानी सप्लाई करता है, जो एक बार फिल होता है कितने पूरा टाइम पानी से, उसके बाद ये 1 वीक चलता है, ये वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे उस एरिया की, 3 डेज चलता है, 4 डेज चलता है। यही क्वेश्चन हम 9th क्लास में करेंगे सेम ऐसे। वहां पे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है कि एक कॉलोनी में ऐसा टैंक है, वो कितने दिन में, मतलब 3 डेज उसका आंसर है, 3 डेज की वाटर सप्लाई देता है उस एरिया को। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है वहां पर भी, वहां डेज फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये बताया टैंक फिल कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट बेस्ड, क्योंकि पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, और डबल वाला जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो भी कंसेप्ट बेस्ड है। एटलीस्ट देखा जाए तो उनका लेवल अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है, सीनियर 9th 10th क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, वहां पर सेम ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे। चलो अब आप एक बार देख लो, कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 कर लो, मैंने करवाया हुआ है ऑलरेडी, एक बार आप रिव्यू कर लो उसको, दोबारा से कर लो सॉल्व। Yes, mark this line on page number 179. On the top, one line is given. Observe that some shapes have 2 or more identical faces, like congruent faces. Name them. Which solid has all the congruent faces? क्यूब आएगा इसका आंसर, क्यूब। ठीक है, क्यूब नहीं, अगर पहली पूछे कि किस जिसमें 2 और ज्यादा फेसेस आइडेंटिकल आते हैं उसमें क्यूबॉइड भी आ सकता है, सिलेंडर भी आ सकता है, लेकिन पूछे जिसमें ऑल द फेसेस आर कॉन्ग्रेंट उसमें क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये मार्क कर लो, ये आ सकता है ऐसे है। तो एक ही बात है, स्क्वायर प्रिज्म का दूसरा नेम क्यूब और क्यूबॉइड ही तो है। आगे रीड करो, आगे रीड करो, डू दिस। नेक्स्ट टॉपिक जो डू दिस दे रखा है वो रीड करो, एग्जांपल्स गिवन है वो रीड करो। पेज नंबर 180 पे गिवन है राइट सर्कुलर सिलेंडर इन विच द लाइन फ्रॉम द रेडियस ऑफ द अपर सरफेस and bottom surface make 90 degree with the base, that is called right circular cylinder. Cylinder can be slanting, but you can, if you make vertical cylinder, that will make 90 degree with the base. लिखा हुआ है पैराग्राफ में, it is written on page number 180. ये जो ये फिगर बनी हुई है साइड पे, ये कहता है ये सिलेंडर है, ये क्या है, ये बकेट है, बकेट की शेप है, देखो ये सिलेंडर नहीं है, इसे कहते हैं फ्रस्टम। क्या कहते हैं इसे? ये 10th का टॉपिक है, इसको कहते हैं फ्रस्टम। बकेट होती है ना, बकेट, ये देखो ऐसे, तो लंबी बना दो आप, इसमें क्या है, दोनों ना चुप करो, ये बोला था इधर से गुरदीप। ये देखो इधर, ये सिलेंडर, ये कोन है, ये एक बड़ा कोन है, ये एक छोटा कोन है, ये देखो 2 कोन दिख रहे हैं ना, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। अगर इस कोन में से ये वाला पोर्शन कट कर दो, ये बन गया फ्रस्टम। ये बकेट की शेप है ना, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, कहता है ये क्या सिलेंडर है, ये सिलेंडर नहीं है, इसे कहते हैं फ्रस्टम। तो फिगर के साथ लिख लो, पेज नंबर 180 पे गिवन है, आ नहीं सकता लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए आपको, जो बुक में लिखा है, आना या ना आना वो बात की बात है, आपको तो पता होना चाहिए बुक में क्या लिखा हुआ है। फ्रस्टम है ये, सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर में टॉप और बॉटम कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये सिमिलर है।
ये मैथ्स की टर्म है। फ्रस्टम का फॉर्मूला डराइव होता है 10th क्लास में, इसके डेरिवेशन करेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं आगे करेंगे। इस बार ये टॉपिक 10th में डिलीटेड है, लेकिन आपके टाइम पे देखेंगे क्या होता है। लास्ट टाइम भी डिलीटेड था, इस बार भी डिलीटेड है। वो इसलिए है क्योंकि सिलेबस, हाँ अभी आगे जाके शायद हो जाए, वैसे आता है। वैसे इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स में आता ही आता था, पता नहीं। अभी बहुत सिलेबस है करने के लिए, अभी तो करो, बस करो। नेक्स्ट टॉपिक रीड करो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सरफेस एरिया कहाँ पे? टू फाइंड द सरफेस एरिया, ये कह रहे हो? फाइंड द एरिया ऑफ ईच फेस एंड ऐड देम। वही जैसे आप रूम में हो क्यूबॉइड में, कहते हैं एक एक फेस का एरिया निकाल लो, सबको ऐड कर दो, दैट विल गिव यू टोटल सरफेस एरिया। और अगर कर्व्ड है तो सिर्फ कर्व्ड पोर्शन का एक एक फेस का एरिया निकाल लो, प्लस कर लो। ये कह रहे हैं। हाँ। ये तो कितनी बार बताया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। और टॉप और बॉटम क्या है? कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों का एरिया सेम है, ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द बेस। ठीक है। और ये भी आपको बताया हुआ है, किसी चीज का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बोलना मैंने क्या बोला रुद्रांश? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं? सी से कर्व्ड, सी से सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस या पेरीमीटर ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर भी बाउंड्री होती है, बट सरकमफ्रेंस कर्व्ड शेप की होती है जैसे सर्कल, बट पेरीमीटर किसी भी शेप का हो सकता है, दैट इज सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, ये डिफरेंस है। मैंने बोला कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्म करने का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस। आज ये बता रही हूँ, दोबारा डेली रिपीट करती हूँ, कल से जिसको नहीं आया फिर देखना। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और वॉल्यूम डिराइव करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जहां नोट करना है कर लो, लेकिन उसके बाद आपको जरूर आना चाहिए कल से।